But रहे as we read the book of Ecclesiastes, the first 6 chapters, जब हम शुरुआती 6 अध्यायों को पढ़ते हैं सबोपदेशक के, Solomon is like, some of us who have got married, you thought you figured your wife out, or you thought you figured your husband out. और जब हम में से कुछ लोग जो शादीशुदा हैं, हम सोचते हैं कि हम लोगों ने शायद अपने लिए एक सही लड़की या सही लड़का पा लिया। But then you realize, as you go through the various seasons, there is something new, something different, and everything is changing all the time. और एकदम से मौसम बदलता है, चीजें बदलती है और आप देखते हैं एकदम से कुछ बदलावट सा आ रहा है। And in our lives, we have often misjudged people. और कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने लोगों को गलत समझा है। Wow, we judge people based on what we may have seen partly of an individual, and we came to a conclusion, and then later we realize, this person is not like how I thought he was. और हम क्या करते हैं, लोगों को थोड़ा बहुत देख लेते हैं और फिर उनका न्याय करते हैं, फिर हम सोचते हैं जैसे मैंने सोचा था इस व्यक्ति के बारे में ये वैसा नहीं निकला। So the same way Solomon also misjudged about life. इसलिए वैसे ही सुलेमान भी जो है जीवन के बारे में थोड़ा गलत समझ बैठा If है। you read the first 6 chapters, everything is the explanations of what he thought and then what he realized afterwards. और हम शुरुआती जो 6 अध्यायों में वो देखते हैं कि सुलेमान जो चीज विचार करता है वो हकीकत में कुछ और होती है। So he is looking at the good things, the pleasurable things, the enjoyable things in life to find meaning and purpose and fulfillment in life. तो वो जीवन में आनंद और खुशी पाने के लिए जो मतलब और हमारा मकसद है जीवन का, उसके बारे में बातें करता He है। thought money, fame, intellectualism or learning could bring that very end that every man desires. वो ये सोचता है कि जीवन में जो नाम होती, शोहरत होती, धन होता है या बौद्धिक जो ज्ञान होता है, ये सब चीजें जीवन में परिपूर्णता लाती है। So we have learned so far in the last previous 5 lessons, his conclusion was that everything is vanity, everything is meaningless. और जो 5 अध्यायों को हमने पढ़ा, उसके निष्कर्ष पे वो यही बोलता है कि हर चीजें व्यर्थ ही है। But now as we come to chapter 7, लेकिन जब हम अध्याय 7 में आते हैं, now Solomon is looking at some of the bad circumstances in his life, अब सुलेमान अपने जीवन में कुछ बुरी अवस्थाओं को देख रहा the है, bad experiences in his जो life, जीवन के बुरे अनुभव हैं उनको देखता है, only to suddenly waken to the realization, I have misjudged everything. Now I have a different outlook to life. और वो ये चीज महसूस करने लगता है, जानने लगता है कि अब तक जो मैं जीवन को जैसे देखता था वो मैं गलत ही सोचता था। And he realizes these things, these bad experiences of my life turned out to be for my good. और उसने ये अनुमान लगा लिया कि मेरे जीवन के जो बुरे अनुभव थे वो हालांकि वो मेरे जीवन के अच्छे ही अनुभव बन गए। So as you come to chapter 7 of Ecclesiastes, you will realize Solomon's tone has changed. और अब हम देखते हैं कि 7वें अध्याय में आने के बाद सुलेमान की बोली बदल जाती है। He is speaking with little bit more clarity and some more sense in his brain. अब वो जो है बुद्धि से थोड़ी समझ अक्ल से बात कर रहा है। And he is like the prodigal son in the Bible. और वो जैसे बाइबल में उड़ाऊ पुत्र हुआ था उसके समान बात कर रहा He है। is coming to his own self and he is coming to his own वो realization. खुद ही स्वयं में महसूस कर रहा है, जान रहा है, समझ पा रहा है। The main focus in this chapter, therefore, is wisdom for better living. और इसीलिए इस अध्याय में जो हम पाते हैं बात वो ये है कि हमको कैसे बुद्धि चाहिए है एक उत्तम जीवन जीने के लिए। But as I was studying and reading again and again, I found out those better things were the outcome of bitter things. और मैं जब अध्ययन कर रहा था, बार-बार पढ़ रहा था, मैंने ये जाना उत्तम जीवन पाने के लिए उसके लिए कुछ कड़वी बातें हैं जो जीवन में होती हैं। In chapter 7, the word better is used 11 times. इस अध्याय 7 में हम पाते हैं ये उत्तम शब्द 11 बार इस्तेमाल हुआ है। Turn to your neighbor and say better. अपने पड़ोसी को देखकर बोले उत्तम। How many of you like that word better? आप में से कितने लोगों को ये शब्द पसंद है I उत्तम? love the word better. मुझे ये शब्द उत्तम बहुत पसंद है। In fact, if you go to the book of Hebrews, I always say one of the key word in the book of Hebrews is better. इब्रानियों की पत्री में जब आप जाते हैं तो वहां पर एक जो शब्द जो कुंजी के रूप में इस्तेमाल हुआ है वो है उत्तम। It's talking about Jesus, the high priest, Jesus who is better than Melchizedek. वहां यीशु के बारे में वो शब्द इस्तेमाल हुआ है कि मलकीसेदेक से उत्तम
उत्तम यीशु हमारा महायाजक है। But for Solomon, these better things are the outcome or the product of bitter things in life. लेकिन सुलेमान के लिए उसके जीवन में उत्तम जीवन या उत्तम चीज जो है उसकी कड़वाहट से निकल कर आई है। When I was a small boy, we were raised on Kerala Ayurvedic medicines. जब हम छोटे बच्चे थे तो मेरा जो बड़ा होना हुआ है, पालन पोषण हुआ है, वो केरला के आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा So if हुआ you है। go to South India, Ayurveda and Ayurvedic medicine is very popular. इसलिए आप दक्षिण भारत अगर जाएंगे तो आयुर्वेदा और आयुर्वेदिक दवाइयां बहुत ही मशहूर हैं। In those days, we used to call what you use today, we used to call them Angrezi Dawai or English medicines. That was not acceptable. People didn't like them. और उस समय के समय में लोग जो है अंग्रेजी दवाइयों को पसंद नहीं करते थे। And we were raised with Ayurvedic और medicines. हमारा पालन पोषण उन्हीं आयुर्वेदिक दवाइयों को खाकर हुआ है। And we hated those medicines और हमें बहुत घृणा थी उनको खाने से, because it was so bitter. क्योंकि वो बहुत कड़वी होती थी। How many of you had those kashayams that I'm talking about? आप में से कितने लोगों ने वो दवाइयां खाई हैं? Yeah, some of you have raised your hands. You know, they are so bitter. वो बहुत ही कड़वी होती हैं। But somehow I used to manage to swallow them लेकिन मैं किसी तरह से उसको निगल लेता था, because if you don't, you're going to get beaten up so badly with the stick. क्योंकि अगर नहीं निगला तो पिटाई हो सकती थी डंडी से। And so we used to just somehow swallow and then manage it with some sugar or something else. और इसलिए हम किस तरह से उसे निगल लेते थे और फिर कुछ चीनी वगैरह खा लेते But my थे। youngest brother, लेकिन मेरा जो सबसे छोटा भाई है, doesn't matter how much my grandfather, my mother, my father, they even got stick in their hand, they're hitting him left and right, he will not swallow. और मेरे जो दादाजी थे, मम्मी पापा है थे, वो मेरे छोटे भाई को वो कितना भी मार दे फिर He भी वो will निगलता नहीं lock था। his teeth. वो अपना मुंह दांत दबा लेता था। It doesn't matter how much you can punish him. आप कितना भी उसको सजा दे दो। So I remember मुझे अभी भी याद है, as a small kid, जब मैं छोटा था, my parents literally tied the hands and legs of my brother. मेरे भाई के जो है मेरे मम्मी पापा हाथ पैर बांध देते थे। And they took the coconut shell, the cover of the coconut, and they made a small piece out of it. और नारियल का जो छिलका होता है उसका छोटा सा टुकड़ा निकाल And my के grandfather put a stick through his mouth, और वो उसके मुंह में डाल देते थे made a little gap, और थोड़ा सा छेद and बनाकर shoveled the coconut piece between his teeth और to create a gap. और उसका जो नारियल का जो छिलका होता था उसके मुंह में डालकर थोड़ा सा हिस्सा, And there he is laying down, and my grandfather is pumping this Ayurvedic medicine into his mouth. और वो लेट जाता था और मेरे जो दादा दादी लोग थे वो लोग उसके मुंह में वो आयुर्वेदिक दवाई डाल रहे होते थे। And this guy will be going, he doesn't want to swallow. और वो अपना मुंह खोल के रखता था, उसको निगलने का मन नहीं है बिल्कुल भी। Until he swallowed, he could not move. जब तक वो निगल नहीं लेता था तब तक वो हिल नहीं सकता था वहां से। But those of us who have taken these medicines, लेकिन जिन लोगों ने ये दवाइयां खाई हैं, they were some of the best medicines for us. वो सबसे अच्छी दवाइयां उस समय की औषधि रही है। They are better than anything else that even English medicines have produced. उस समय के हिसाब से अभी जो अंग्रेजी दवाइयां बनती हैं वो उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। How many of you like bitter gourd? आप में से कितने लोगों को करेला पसंद है? Some of us likes them, but many people don't like them because they're bitter. कईयों को पसंद है, कईयों को नहीं पसंद है क्योंकि वो कड़वा होता है। But if you are a diabetic patient, bitter gourd is number one medicine for diabetic. लेकिन अगर आप शुगर के मरीज हैं तो आप लोगों के लिए करेला बहुत अच्छा है। So the bitter things in life, whether it is medicine or anything else, are sometimes the best thing for us. तो कई बार जो कड़वी चीजें होती हैं, चाहे वो दवाई हो चाहे कुछ और भी हो, हमारे जीवन के लिए उत्तम बन जाती हैं। I'm sure all of us want to grow in this life. मैं विश्वास करता हूँ हम सब अपने जीवन में बढ़ना चाहते We हैं। want to grow to the next level of maturity. We want to grow to the next level of growth in God. हम परमेश्वर के साथ दूसरे स्तर में परिपक्वता में बढ़ना चाहते हैं। So Solomon is identifying those better things in life, comparing to something else. He's comparing to something else and saying, better than this is this, so that you can grow more. इसलिए सुलेमान जो है अपने जीवन में उत्तमता में बढ़ना चाहता है और वो दूसरी चीजों से तुलना कर कर ये बताता है ये उत्तम चीजें हैं So इसमें turn बढ़ने your के लिए। Bibles to Ecclesiastes chapter 7. इसलिए सबोपदेश की पुस्तक उसके 7वें अध्याय की ओर पलटते And we're हैं going to look at the first wisdom nugget और हम सबसे पहली बुद्धि की बात को देखने जा रहे हैं for better living. जो अच्छे जीवन उत्तम जीवन जीने के लिए है। And he says in verse 1, और वो पहले पद में ऐसा कहता है, a good name is better than fine perfume, and the day of death better than the day of birth. यहाँ ऐसा लिखा है, अच्छा दिन अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। So the first wisdom Solomon says for us
for better living is to build a good reputation. इसलिए सुलेमान हमारे उत्तम जीवन जीने के लिए जो सबसे पहली बुद्धि की बात बताता है वो यह है कि हमको कैसे एक अच्छे प्रतिष्ठित जीवन जीना है। So what is Solomon referring to when he is talking about a good reputation, a good name for a person? तो सुलेमान यहाँ क्या कहना चाह रहा है जब वो अच्छे नाम या अच्छी प्रतिष्ठा के बारे में बात कर रहा A है? good name, he is talking about his reputation, his legacy, his character that people will know him by. जब वो अच्छे नाम के बारे में यहाँ बात कर रहा है तो वो अच्छी प्रसिद्धि या अच्छे नाम या अच्छे चरित्र के बारे में बात कर रहा In Proverbs chapter 22 verse 1, है। जब हम नीति वचन 22 के 1 में आते हैं, Solomon himself says there, सुलेमान यहाँ पर ऐसे कहता है, a good name is to be chosen rather than great riches, loving favor rather than silver and gold. यहाँ पर ऐसा लिखा है, बड़े दिन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है और सोने चांदी से दूसरे से अधिक प्रसन्न उत्पन्न है। So Solomon really understood the importance of having reputation in life. इसलिए सुलेमान ने ये बहुत अच्छे से अपने जीवन में जान लिया कि हमको एक अच्छा नाम अपने जीवन में कैसे कमाना है। But here in Ecclesiastes, he uses the imagery of ointment or perfume. और यहाँ पर जो है वो सबोपदेशक की पुस्तक में एक चीज का रूपक के इस्तेमाल कर रहा है, वो है इत्र। Now, ointment, of course, perfume, fine perfume, of course, is a symbol of wealth or richness. एक अच्छी एक उच्च जो है इत्र जो है वो किसी की संपत्ति को संपन्नता को बताती है। Even today, perfumes, if you go to the best perfumes in the shop, they are very expensive. You can buy perfumes that is worth up to 100,000 rupees, up to 1 lakh rupees, just for one bottle of perfume. आजकल भी अगर आप कभी दुकान में कहीं जाते हैं और जो इत्र की जो दुकानें होती हैं जहाँ परफ्यूम मिलती है, आप जानेंगे वहां पर 1-1 लाख रुपए तक की भी इत्र या खुशबू की जगह चीजें मिलती हैं। So Solomon is referring to good reputation as of high value. इसलिए सुलेमान यहाँ पर ये बता रहा है अच्छा नाम या अच्छी प्रसिद्धि जो है उसकी उच्च मूल्य है। But it is more than that, more than just the high value that Solomon is talking about. इससे बढ़कर सर्वोच्च मूल्य रखने वाली वो चीज से बढ़कर In ancient times, प्राचीन समय में dead bodies of the wealthy people would often be anointed by costly perfumes. तो जो धनी लोग होते थे उनके मृतक शरीर के ऊपर बहुत ही महंगा इत्र लगाया जाता था। The more costlier the perfumes, the more honor the person was given. जितना ज्यादा महंगा वो इत्र लगाया जाता था शरीर पे उतना ही उस इंसान को ज्यादा इज्जत दी जाती The थी। perfume also was a sign as a material for preserving the body for long preservation. और वो जो इत्र होता था वो इसलिए भी लगाया जाता था ताकि वो जो मृतक शरीर है उसको कई समय तक रखा जाए। So Solomon obviously is having great emphasis on the importance of having a good name or a good reputation. इसलिए सुलेमान यहाँ बहुत ध्यान से ये बात बताना चाह रहा है कि एक अच्छा नाम होना जरूरी है। So Solomon says, इसलिए सुलेमान कहता है it's better to finish out life with a good reputation than to have lots of money, even better than having a lots of perfume on your dead body on your funeral day. इसलिए सुलेमान ये कहना चाह रहा है यहाँ पर ज्यादा धन होने से अच्छा या हमारे मृतक शरीर में ज्यादा इत्र लगने से अच्छा यह है कि हमारा एक अच्छा नाम या प्रसिद्धि हो। So what is the use of applying fine ointment on your dead body if you have lived a miserable life? उसका क्या अर्थ होता है कि अगर एक मृतक शरीर में बहुत ही महंगा इत्र लगाया जाए इसके बजाय कि उसने अपना उस इंसान ने अपना जीवन अच्छा इस संसार में जिया One of the things that I struggle with going to funerals एक चीज जिसके साथ मैं संघर्ष करता हूं जब मैं किसी के अंतिम संस्कार में जाता हूं is how people sometimes, especially pastors who are conducting the funeral service, विशेष करके जब मैं उन पासवानों को देखता हूं जो अंतिम संस्कार दे रहे हैं is telling the people how this person is now in heaven. बताते हुए लोगों को कि ये व्यक्ति अब स्वर्ग में है। Through their prayers and through the praises, it is as if these people are forcing this person
into heaven. उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा और जो वो आराधना वहां करते हैं, ऐसा लगता है कि वो दबाव डाल रहे हैं उस व्यक्ति को कि वो किस तरह से स्वर्ग पहुंच जाए। When this person is alive, he never followed Christ, जब वो व्यक्ति जीवित था, वो कभी भी यीशु के पीछे नहीं चला, never did anything for God, उसने परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं किया है। went to church on Christmas Day and Easter, और ईस्टर और सिर्फ क्रिसमस के दिन वो कलीसिया में गया, and he carries a Christian name. और उसका नाम जो है वो मसीही नाम है। And because he carries a Christian और name, क्योंकि उसका एक मसीही नाम है, now at the funeral, अब जो अंतिम संस्कार चल रहा है, everybody is so sure that this man is in heaven. सब लोग बिल्कुल पक्के हैं कि वो व्यक्ति स्वर्ग पहुंच गया है। But he spent more time in liquor shop than लेकिन- spending in the house of God. लेकिन उसने ज्यादा समय उस व्यक्ति ने शराब खाने में बिताया है, इसके बजाय कि वो परमेश्वर के घर में होता। So I have determined that if I'm going to conduct funeral service, इसलिए मैंने ये निर्णय ले लिया है कि जब मैं अंतिम संस्कार दूंगा, I'm not going to praise the person and force God or twist God's hand that somehow this person deserved to be in heaven. मैं उस व्यक्ति की तारीफ नहीं करूंगा, ना मैं परमेश्वर का हाथ मरोड़ूंगा कि किसी तरह से वो व्यक्ति स्वर्ग पहुंच जाए। So it is not my job to judge him and to affirm his destiny. ये मेरा काम नहीं है कि मैं उस व्यक्ति का न्याय करूं और उसका जो अंतिम उसके जीवन का लक्ष्य है वो मैं निर्णय लूं। That is exactly what Solomon is saying. यहाँ सुलेमान वही बात कह रहा है। What is the use of applying so much of wealthy ointment on a dead body if you don't have a good reputation? अगर हमारा अच्छा नाम ही नहीं है संसार में, तो उसका क्या फायदा है कि हमारे मृतक शरीर में महंगा इत्र लगाया जाए। The idea that Solomon is using here यहाँ पर जो विचार जो सुलेमान प्रस्तुत कर रहा है वो ये है is that the cost or the wealth symbolism of your life means nothing if you don't carry a good name. अगर हमारा अच्छा नाम नहीं है, सुलेमान ये कहना चाह रहा है, अच्छा नाम नहीं है तो कुछ मतलब नहीं है कि हमारे पास कुछ महंगी चीज हो। How many of you remember when Mary of Bethany came to Jesus and poured the oil out at the feet of Jesus? आप में से कितने लोगों को याद है बेतनिया में वो स्त्री जो थी उसने अपना इत्र उंडेल दिया Now परमेश्वर के। this woman obviously was an immoral woman. और वो स्त्री जो है अनैतिक जीवन जी रही She थी, was a sinful woman. वो एक पापिन स्त्री थी। It is said that she must have been in prostitution. कहा जाता है कि शायद वो व्यभिचारिणी भी थी, And maybe even the perfume that she brought to Jesus was from the savings of money she earned from selling her own body. शायद ये भी हो सकता है कि वो जो जटामासी का जो वो इत्र लेकर आई, शायद वो उस पैसों से था जो वो गलत काम में कमा रही थी। But the value of the perfume was so high. लेकिन जो उस कीमत थी उस इत्र की वो बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। And Judas was complaining at that moment when this woman was pouring this precious oil at the feet of Jesus. और जब वो यीशु के चरणों में वो इत्र उंडेल रही थी तो यहूदा को बहुत शिकायत हुई। Judas said this oil is worth about 300 denarii. और उसने ऐसा बोला यहूदा ने कि ये तो 300 दिरम का जो है ये इत्र है जो ये पैरों में उंडेल रही है। Compared to today's value, that oil is worth about 25 lakh आज rupees. के समय में लगभग 25 लाख रुपए का वो इत्र था। So very costly stuff she was pouring at the feet of Jesus. वो बहुत ही महंगा इत्र यीशु के चरणों में उंडेल रही थी। So the idea of the abundant supply of the oil is not necessarily this for the smell of the oil, तो ज्यादा प्रयोग करना या ज्यादा तेल उंडेलना इसलिए नहीं था कि ज्यादा खुशबू आए, but the idea here is the character behind the pouring out of the oil. लेकिन वो जो चरित्र जिस स्वभाव से वो उस तेल को उंडेल रही है यहाँ पर वो By महत्वपूर्ण है। giving all of her life savings at the feet of Jesus, she was saying to Jesus, Jesus, I repent of my sins. I turn from my evil ways. I give you everything that I have, everything that I own. और जितना कुछ उसके पास था वो सब कुछ देकर ये कह रही थी कि परमेश्वर तू मेरे पापों को क्षमा कर दे, मेरा जीवन तू ले ले। It speaks volume of this woman's character now. यहाँ पर इस समय जो वो कार्य कर रही है इसके द्वारा हम उसके चरित्र के बारे में एक बहुत बड़ी बात Now देखते हैं। her past doesn't mean anything for God. अब परमेश्वर के लिए उसके भूतकाल से कुछ मतलब नहीं रखता है। Jesus does not see her as a prostitute. यीशु अब उसको एक व्यभिचारिणी के रूप में नहीं देख रहा है। Jesus accepts her sacrifice with great honor and respect and blesses her. यीशु जो है उसके बलिदान को जो वो चढ़ा रही थी उसको बड़े आदर के साथ लेता है और उसका आदर करता है, Because she was willing to surrender everything to क्योंकि Jesus. वो सब कुछ परमेश्वर यीशु के चरणों में समर्पित करना चाह रही She थी। could have given, opened the bottle and
taken a little bit of perfume and applied it on Jesus. वो थोड़ा सा वो इत्र लेकर यीशु के शरीर पर लगा सकती थी, Right? But what did she do? लेकिन उसने क्या किया? She poured it all. उसने सारा उंडेल दिया। So what is important to God is not just doing it for the sake of doing it. यीशु के लिए क्या महत्वपूर्ण है कि हम जो भी कार्य करते हैं वो सिर्फ करने के लिए ना करें, Let's just give a little bit to God. हम थोड़ा थोड़ा बस यीशु को दे दें। But what God looks is the character behind our giving. लेकिन परमेश्वर हमारे देने का जो स्वभाव है, जो हमारा सोच है, उसको देखता है। Are we willing to give everything we have to God? क्या हम इच्छुक हैं कि हम परमेश्वर को सब कुछ दे दें? We could just give it for namdari, for namesake. शायद हम सिर्फ नाम के लिए थोड़ा सा कुछ दे देंगे, But God wants all of it. लेकिन यीशु सब कुछ चाहता है। So this morning, I want you to think of the finest cologne, or the stuff that you like to put on your body. इसलिए आज सुबह आप उस बारे में सोचें कि वो सबसे उच्च मूल्य रखने वाला वो इत्र क्या है जो शरीर पर Think लगा of सकते हैं। the most expensive brand of perfume that you like. जो सबसे महंगा इस समय जो ब्रांड चलता है, जो बिकता है, जो आपको पसंद है, वो कौन Whether सा it है? is Armani or Polo, I don't know what brand you like. अलग अलग जो ब्रांड आते हैं, पोलो और मानी, चाहे वो कुछ भी क्यों ना होने पाए। And I want you to translate this verse into something like this. और मैं चाहता हूं कि आप इस पद का अनुवाद ऐसे कर दें And look into this Bible verse. और इस पद को ऐसे देखें। Say, a good personal name is better than Armani or Polo. जो भी आपका पसंदीदा परफ्यूम है, उसका नाम यहाँ डालकर अच्छा नाम अनमोल इत्र से उत्तम है। Your character, your reputation, it is better than anything else. आपका चरित्र, आपकी प्रसिद्धि जो है किसी और चीज से उत्तम है। So you can put your name there आप अपना नाम वहां डाल सकते and हैं। say, for James Chaco, my name, James Chaco, for my character is more important than how I smell today. तो मेरे नाम जेम्स चाको जो चरित्र है उससे कितना ज्यादा जरूरी है कि वो इत्र से ज्यादा अच्छा हो। My character is more important than how much degree I have at the end of my name. मेरा चरित्र ज्यादा जरूरी है उससे बढ़कर कि मैंने कितनी डिग्रियां हासिल करी हैं। When a person accomplishes something, जब अपने जीवन में कोई कुछ पा लेता है, we tell people हम लोगों से कहते हैं that person has made a name for himself. उस इंसान ने अपने लिए नाम कमाया है। In Olympics or Commonwealth Games, when people win a gold medal, जब खेलों में लोग गोल्ड मेडल जीतते हैं, they may have not been known before. शायद उनको कोई पहले जानता नहीं But था, when they reach a certain status in their life, लेकिन जब अपने जीवन के वो किसी स्तर पे पहुंच जाते we हैं, tell them they made a name for themselves. हम कहते हैं उनके लिए कि इन्होंने अपने लिए नाम कमाया है। And if they have a good reputation, और अगर उनकी एक अच्छी इज्जत है, प्रसिद्धि है and they have a good और character, उनका अच्छा चरित्र है, then people will respect them. तब लोग उनका आदर करते हैं, People will honor them. तब लोग उनका सम्मान करते हैं। Right? Imagine you are at the end of the service, आराधना के खत्म होने के बाद ऐसा विचार करें, as you walk out, जब आप बाहर जाते हैं, you see in the parking lot a Porsche car is parked. आप देखिए एक गाड़ी खड़ी है जो बहुत महंगी है, वो बाहर खड़ी है। Or Porsche, I don't know in French, what do you call Porsche? Yeah, it is one of the most expensive car or brand in the car industry. और वो गाड़ियों के उसमें वो बहुत ही महंगी गाड़ी होती है और वो अगर वहां खड़ी है If you see a Porsche car parked outside, और आप देखते हैं कि वो बाहर नीचे खड़ी है you look at that car, और आप उस गाड़ी को देखते हैं, what will you be thinking? आप क्या सोचेंगे? You will think, oh, what a piece of junk. आप ऐसा बोलेंगे, अरे ये कैसा छोटा सा टुकड़ा है कूड़े का। How many of you will say like that? आप ऐसा कोई बोलेगा क्या? No, you will not say, what a नहीं। piece of junk. हम में से कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि कैसा छोटा सा टुकड़ा है कूड़े का। Instead, you will definitely, if I am there, I will go around, I will walk around the car. I wouldn't touch it because I know some of those people who owns those precious car don't like anybody touching it. So I won't touch it, but I will definitely look. I will go look inside the window to see everything. अगर मैं होऊंगा तो मैं जाऊंगा, मैं उस गाड़ी के चारों तरफ घूमूंगा, मैं उसके अंदर झांक कर देखूंगा, छूऊंगा नहीं। I will look at the craftsmanship of how this is designed. मैं उसकी आकारी, उसकी नकाशी, जिस तरह से वो गाड़ी बनी है उसको देखूंगा। I will look at the precision by which everything is created. जिस तरह से, जिस सफाई से उसको रचा गया है, मैं उसको देखूंगा। I look at the quality of the work. और जो गुण, जो उसके अंदर जो एक गुण है उसको देखूंगा। And I already I know the brand name. और क्योंकि मुझे पहले से ही उसके ब्रांड का नाम पता And है, so in my mind, इसलिए मेरे दिमाग I'm में already having a certain recognition for this product.
पहले से ही मैंने उसके लिए कुछ अपने दिमाग में विचारधाराएं बना रखी हैं, Because Porsche as a company has been in the car industry for many decades. क्योंकि ये गाड़ियों की कंपनियों में ये वाली जो गाड़ी है वो बहुत सदियों से है। They have gained their reputation. उन्होंने अपनी प्रसिद्धि बनाई है। How many of you know Johnson and Johnson? आप में से कितनों को पता है जॉनसन एंड जॉनसन? They are still one of the oldest company in the world that has a long-standing branding name in the business market, दुनिया में in the अब- business world. दुनिया में अभी भी व्यवसाय के क्षेत्र में हम पाते हैं कि इस ब्रांड ने अपना खूब नाम रखा है, They have called back products from the shelves because the products had some क्योंकि damage. उसका कुछ उस प्रोडक्ट में कुछ चीज गलत थी। And so good companies will call back their damaged products at the cost of major loss for themselves in order to preserve their name. इसलिए अच्छी जो कंपनियां होती है वो इन सारी जिनमें नुकसान होता है उन चीजों को ले लेती है ताकि वो अपने नाम को बचा सके। So a good name will endure long. इसलिए अच्छा नाम हमेशा के लिए लंबा समय के लिए बना If रहेगा। you put some perfume on your body, अगर आप अपने शरीर में कुछ परफ्यूम लगाते हैं it will last till your body sweats again. और जब तक आपका शरीर में दोबारा वापस पसीना नहीं आ जाता तब तक वो बनी रहेगी। Or how long this perfume had the capacity to endure. और कितने समय तक वो इत्र वो परफ्यूम आपके शरीर में बनी रहती है उसकी क्षमता है। But a good name will last forever. लेकिन एक अच्छा नाम जो है वो हमेशा के लिए बना रहेगा। So how then do you determine how you are known by other people around you? तो कैसे दूसरे लोग आपके बारे में जान पाएंगे? Let me ask you this question. मैं आपसे ये प्रश्न पूछना Do you चाहता have a हूँ, good name? क्या आपका एक अच्छा नाम है? I'm not talking about your name that your mom and dad gave वो you, मैं उस नाम की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपके माता पिता ने आपको दिया है, but the name that you are giving to yourself. लेकिन वो नाम जो आप अपने आप को खुद देते हैं, Is it a good name? क्या वो एक अच्छा नाम है? Will your husband say, honey, you have a good name? क्या आपका पति आपको बोलेगा प्रियतम तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है? Would your wife say, honey, do you have a good name? क्या आपकी पत्नी आपको बोल सकती है Will your प्रियतम आपका children नाम look अच्छा up to है? you and say, Dad, you have a good name? क्या आपका बच्चा आपको बोल सकता है पिता तेरा आपका नाम अच्छा है? You know, when I was feeling depressed and when I was feeling sad one time, जब मैं एक बार दुखी हो रहा था, निराश हो रहा था, my daughter told me, मेरी बेटी ने मुझसे कहा, and she said, when she was very small, वो बहुत छोटी थी उस समय, she said, Dad, उन्होंने मुझसे बोला पापा do you realize your name? आप क्या महसूस करते जानते हैं अपने नाम के बारे में? You realize you have a good name? आपको पता है कि आपका एक अच्छा नाम Do है? you realize that people are jealous of your good name? आपको पता है कि लोग जलन करते हैं आपके अच्छे नाम And you से? know, she said, you know, people will do anything to have what you have. लोग कुछ भी करेंगे वो पाने के लिए जो आपके पास है। She was putting realization and value into my own character, my own person, not James Chaco, but my own person that is inside of वो me. मेरे नाम पे नहीं लेकिन मेरे चरित्र को मूल्य दे रही थी, मुझे महसूस करा रही थी। But there are some people, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, if you ask them, do you know that guy? अगर आप उनसे पूछे आपको पता है उस Do you लड़की know के बारे में, do you know this woman or that man? उस स्त्री के बारे में, उस पुरुष के बारे में? I don't want to say anything now. नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं कहना I है, don't want to talk about him now. मुझे उसके बारे में अभी कोई बात नहीं करनी Yeah, है। the moment you hear, I don't want to talk about him, जब आप ऐसे बोलते हैं तुरंत कि मुझे उसके बारे में कुछ बात नहीं करनी है, what does that mean? क्या मतलब है उसका? It means I don't have much good things to say about him. इसका मतलब यह है कि मेरे पास ज्यादा कुछ अच्छी बातें नहीं है उस व्यक्ति के बारे में I कहने के know, लिए। I know about him. हाँ, मुझे पता है उसके बारे में, I heard a lot about him. मैंने उसके बारे में बहुत सुना है। So we need to be very, very careful what kind of name we are giving to ourselves. इसलिए हमको बहुत ध्यान रखना है कि हम अपने आप को स्वयं को कैसा नाम But देते there is हैं। a tricky part to this verse. लेकिन यहाँ पर भी एक थोड़ी विचित्र सी बात है जो हम The देखते हैं, second part of this verse, जो पद का दूसरा हिस्सा it है। says the day of death is better than the day of birth. यहाँ ऐसा लिखा है मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। What does that mean? इसका क्या मतलब बनता है? The day of death is better than the day of one's birth. मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। Now, reading that, you will say, I thought Solomon was making some sense, but he's going back to chapter 1, 2, and 3, and he's mentally bankrupt again. और हम यहाँ पर फिर बोलेंगे कि सुलेमान ऐसा लगता है कि वापस पहले दूसरे तीसरे अध्याय में चला गया और दिमाग से फिर दोबारा से हट चुका है। But I don't think Solomon is mad here. लेकिन यहाँ पर सुलेमान मूर्खता की बात नहीं कर रहा है। This is what he is saying. यहाँ पर वो ये बात कह रहा है, Ending your life with a good reputation is better than starting life with lots of opportunities to enjoy life.
वो यहाँ ये कहना चाह रहा है, अपना जीवन अच्छे नाम के साथ समाप्त करना वो अच्छा है, इसके बजाय हम इस संसार में पूरा जीवन बिताए उन अवसरों के साथ जो हम जिसका हम मजा लेते हैं। I was thinking about some big characters मैं उन बड़े बड़े चरित्रों के बारे में सोच रहा था whose children have tried to emulate their father's name. जिन बच्चों ने अपने पिता का नाम वैसे ही अपने आप लागू करना चाहा। Few weeks ago, I was reading about Sachin Tendulkar's son. कुछ हफ्तों पहले मैं सचिन तेंदुलकर के बेटे के बारे में पढ़ रहा And I था was reading how Sachin Tendulkar's son tried to become a world-class cricketer. और मैं ये देख रहा था कि उसका बेटा भी उसी के समान कैसे एक दुनिया प्रसिद्ध एक क्रिकेटर बनना चाह रहा है। And the board of BCCI have proved to the world that nepotism doesn't work in sports. पीढ़ियों को या पारिवारिक रिश्ता में sports नहीं चलेगा। अपने until and unless you have what it takes to be number one, you are not going to be that your dad's position. अगर आप स्वयं में वो क्षमता रखते हैं कि आप खुद एक क्रिकेटर बन सकते हैं तभी आप हो सकते हैं, नहीं तो अपने आपके पिता के होने पे आप नहीं बन सकते। Because of the relationship or whatever, Mumbai franchisee IPL, Mumbai Indians purchased Sachin's son, right? IPL में मुंबई इंडियंस का टीम उनको खरीद लिया सचिन तेंदुलकर का बेटा को। But do you think he even played one game? आपको क्या लगता है क्या उसने कोई एक भी खेल खेला? He did not even play a single match. उसने एक मैच भी नहीं खेला। For the whole season, he sat on the bench waiting for an opportunity. पूरे समय पूरे उस जो श्रृंखला निकली उसमें वो बैठा रहा कि उसको एक मौका मिलेगा। Even when he was selected, he didn't have the opportunity to play. जब उसको चुना भी गया तब भी उसको अवसर नहीं मिला खेलने What के is लिए। the reason? तो फिर क्या कारण है इसका? The reason is you have to earn your reputation by your performance, not because of the name of your father. कारण ये है कि हमको अपना नाम अपनी प्रसिद्धि खुद कमानी है उसके बजाय कि हम अपने पिता के ऊपर निर्भर होकर। Hello? Because your dad served God doesn't mean you will go to heaven. ऐसा नहीं है कि अगर आपके पिताजी ने परमेश्वर की सेवकाई करी तो आप स्वर्ग जाएंगे। Because your dad is a pastor doesn't mean that I'm now a Christian. और अगर आपके पिताजी पासवान रहे तो आप जो है एक मसीही बन गए हैं। So Solomon is saying, इसलिए सुलेमान कह रहा है, your birth is not so important as much as how you end your life. Your death is more important. आपका जन्म जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखता जितना महत्वपूर्ण आपका मृत्यु का दिन रखता है। We all know that a person can live an exemplary life for many years only to ruin it in the last minute. हम ये अच्छे से जानते हैं कि लोग अपना पूरा जीवन एक उदाहरण का जीवन जी सकते हैं लेकिन अंत में कुछ क्षणों के अंदर अपना जीवन खराब कर Have देते you हैं। seen people who have done so well for many years in their life only to drop it at the last minute? आपने देखा है कई लोगों ने अपने जीवन में बहुत से बड़े-बड़े काम किए लेकिन अपने जीवन के अंत में चूक गए। And when I was small, I heard the story of a person who went to the market to buy milk in a clay pot. जब मैं छोटा था तो मैंने एक कहानी सुनी है कि एक व्यक्ति जो है एक छोटे से कुल्हड़ में दूध लेने के लिए गया। So went to the shop and bought the milk, walked all the way. As she was climbing the steps to enter the house, she dropped the pot and the clay broke and the milk is shattered at the doorstep. और वो दूध खरीदता है, दूध खरीद के जब सीढ़ियों पे चढ़कर आखिरी सीढ़ी चढ़ रहा होता है तो हाथ से वो मिट्टी का बर्तन गिर जाता है और दूध गिर जाता है। Many people end their life like that. कई लोग अपना जीवन अंत ऐसे ही करते हैं। They do so well only to damage it in the last minute. वो इतना अच्छा करते हैं अपने जीवन भर लेकिन आखिरी समय में चूक जाते हैं। So what is Solomon saying? इसलिए सुलेमान यहाँ क्या कह रहा है? That end is very important. कि जो अंत है वो बहुत जरूरी है। It's not how you start your life, ये महत्वपूर्ण नहीं रखता कि हम जीवन शुरू कैसे करते but it हैं, is how you finish your life that matters. लेकिन जीवन हम समाप्त अंत कैसे करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। Many of us are very good at starting right. हम में से कई लोग अपना चीजों को शुरू करने में बहुत अच्छे हैं। We start with good intentions. हम बहुत अच्छे देह के साथ शुरू करते We हैं। get married thinking I'm going to have a great family. हम शादी करते हैं ये सोचकर कि बहुत अच्छा परिवार होगा हमारा। We get married thinking I'm going to raise my children with my husband, my wife. हम शादी करते हैं कि मैं अपने पति या पत्नी के साथ अपने बच्चों का पालन पोषण We करूंगा। start this journey with great excitement. हम इस यात्रा को बड़ी ही उत्तेजना के साथ शुरू करते हैं But then along the way it is dropped. लेकिन एकदम से रास्ते के बीच में वो चूक That जाती is है
धन्यवाद। exactly what Solomon is यहाँ talking about. सुलेमान उसी चीज के बारे में बात कर रहा है। We have to persevere in this journey to finish well. हमको धैर्य के साथ नित्य लगातार आगे बढ़ते जाना है You ताकि हम खत्म cannot कर give सकें। up till you cross the finish line. हम जब तक उस आखिरी रेखा तक ना पहुंच जाएं, हम बीच में हार नहीं मान सकते। Paul the apostle at the end of his life, सुलेमान पौलुस प्रेरित जो है अपने जीवन के अंत में he said, I have fought a good fight. वो कहता है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली I है, have kept my faith. मैंने अपने विश्वास को रखा है। Now I'm ready to surrender. Now I'm ready to wait for my time to go to heaven. अब मैं तैयार हूँ, अब मैं समर्पित हूँ, अब मैं अपना जीवन तैयार हूँ कि मैं स्वर्ग में बिता सकूं। How many of you want to be able to say that? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आप योग्य बन जाएं That ऐसा बोलने के I लिए have lived a good life. कि मैंने अपना जीवन अच्छे से जिया I है, have peace in my heart about how I manage money, how I manage my time. मैं अपना समय अपना पैसा किस तरह से देखता हूँ उस विषय में मेरे मन में शांति है। Now that death, the call to go to home, to be with God may come any moment in our life. क्योंकि वो बुलाहट उस स्वर्ग में जाने के लिए हमारे जीवन में कभी भी आ सकती है। You cannot say that you will reach home today. आप ये नहीं कह सकते कि आज आप घर पहुंच जाएंगे। Hello? I'm scaring some of you now, मुझे पता है आप में से मैं किसी किसी को डरा रहा हूँ, but that's a reality. लेकिन ये सत्य है। I may not get back to my house. मुझे पक्का नहीं है कि मैं अपने घर पहुंच And so पाऊंगा। that is the reality of life. इसलिए अगर ये जीवन का सत्य है तो Right at this moment, I need to have the confidence to know I'm ready to go home. इसी समय इसी क्षण मुझे ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं तैयार हूँ घर If जाने के लिए। Jesus calls me, अगर यीशु मुझे बुलाता है, I need to have peace in my heart मेरे जीवन में शांति होनी चाहिए to है know that I have lived a good life. कि मेरे को ये पता हो कि मैंने एक अच्छा जीवन जी I लिया fought है, a good fight. मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ ली I है, kept my faith. मैंने अपने विश्वास को रखा है I'm ready, God. और मैं तैयार हूँ यीशु। Call me now. परमेश्वर तू मुझे बुला ले, Amen. That's why I'm not afraid of dying. इसलिए मुझे डर नहीं है मृत्यु का। Is there anybody here afraid of dying? कोई डरता है मृत्यु से? I hope not. मैं आशा करता हूँ आप में से कोई Because डरता नहीं death है, is not my end. क्योंकि मृत्यु मेरे जीवन का अंत नहीं है, This is the beginning of a better life. वो एक शुरुआत है अच्छे जीवन के लिए। Death for me is the beginning of a better life. मृत्यु जीवन की एक अच्छी शुरुआत है अच्छे And so जीवन की। let's live with confidence इसलिए हियाव के साथ दृढ़ निश्चय के that साथ at जिए any given moment I'm ready to be taken कि home. जीवन के कोई भी क्षण में मैं तैयार हूं कि मैं घर उठा Now लिया जाऊं। don't confuse what Solomon is saying. इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह से असमंजसता में ना पड़े जो सुलेमान Solomon कह is रहा not है। saying it is better to die than to be born. सुलेमान ये नहीं कह रहा है कि ये अच्छा है कि हम लोग मर जाएं इसके बजाय कि हमारा जन्म हो। Obviously, if you are not born, you cannot die. ये बात सच है कि अगर आप जन्म ही नहीं लिए हैं तो मरेंगे कैसे? Only if you're born, you will die. अगर आप जन्म लिए हैं तो ही आप मरेंगे। What Solomon is saying is this. यहाँ सुलेमान जो कह रहा है वो ये है You know, that these are two significant days in your life. कि ये 2 दिन हमारे जीवन के मुख्य दिन होते हैं, Your birth जन्म का दिन, and your death. मृत्यु का दिन। And your day of birth is not so important, as much as important as your death. और जितना आपका जन्म का दिन, जितना आपका मृत्यु का दिन महत्वपूर्ण है उतना आपका जन्म का दिन नहीं है। When you go to the cemetery, जब आप एक Qabristan. कब्रिस्तान जाते हैं, When you go to the cemetery, you will find the year of birth of the person, हम देखते हैं वहां पर कि व्यक्ति के जन्म का दिन लिखा होता and है then the year of the person's death, और उसके मृत्यु का साल लिखा होता है and then between there will be a dash. और बीच में वहां खाली पड़ा होता है। Do you know the most important communicating factor in that message is that little dash? और बड़ी चीज जो दूसरों को बताने के लिए है वो ये होती है, वो जो बीच में रेखा पड़ी होती है। How you lived your life. आपने अपना जीवन कैसा जिया है। I know for some of us, birth means big thing. हमारे में से कई लोगों के लिए जन्म का दिन बहुत बड़ी बात होती है। I know some of you like to party and celebrate for birthdays. हम में से कई लोग चाहते हैं कि हमारे जन्मदिन को बड़े ही खुशी के साथ बनाया जाए, But I want to urge you, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ, if you are alive when I die, अगर आप जीवित हैं जब मैं मरूं, I pray that nobody will cry. मैं चाहता हूँ कि कोई ना रोए I pray that all of you will celebrate. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग खुशी बनाएं, Amen? Celebrate what God has done. आनंद बनाए उस चीज के लिए जो परमेश्वर ने किया है। If it is only 55 years, अगर वो सिर्फ 55 सालों के लिए है, celebrate that 55 years. आनंद बनाए उन 55 सालों के To लिए। me, I want my death to be a greater celebration
than my birthday मैं चाहता celebration. हूं कि मेरा मृत्यु का दिन बहुत आनंद का दिन हो उससे बढ़कर कि मेरे जन्म का दिन। Amen? Does that make sense to you? क्या आपको समझ में आ रही है ये बात? Because that is more important than the celebration of my birth. क्योंकि वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके बजाय कि हमारे जन्मदिन। Amen? Because my death reveals who I am. क्योंकि मेरा मृत्यु जो है वो बताता है कि मैं कौन हूं। I don't want people to stand at my funeral and say all kinds of made up stories about me. और मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे अंतिम संस्कार के समय में वहां खड़े होकर मेरे लिए कहानियों को बनाएं। I don't want the pastor to stand there and say, James is going to heaven. मैं नहीं चाहता कि वहां पासवान खड़े होकर ये बोले कि जेम्स जो है वो स्वर्ग जा रहा है। Because if he knows the truth of who I am, he knows where I will be going. क्योंकि अगर वो मेरे जीवन के सत्य को जानता है तो वो ये भी जानता है कि मैं कहाँ जा But रहा I हूँ। would rather him speak the truth about me लेकिन मैं ये चाहूंगा कि वो व्यक्ति मेरे जीवन के बारे में सत्य बोले and not bluff and lie in front of people और- to make me feel good. और कहानियां ना बनाए या झूठी बातें ना बोले मुझे अच्छा महसूस And so कराने I के। want to encourage you, as Solomon says, इसलिए मैं आप सबों को उत्साहित करता हूं जैसे सुलेमान that कहता we है live a life that is worthy of who we are. कि हम अपना जीवन ऐसे जिए उस योग्य जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। The native Indians of America have a saying like this. जो अमेरिका में जो रहने वाले जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो ये कहते हैं They say when you were born, you cried and the world rejoiced. वहाँ वो ऐसा बोलते हैं कि जब आप उत्पन्न हुए थे तो आप रो रहे थे और दुनिया आनंद बना रही थी। When you were born, you cried and the world rejoiced. जब आप पैदा हुए तो आप रो रहे थे और दुनिया हंसी कर रही थी। सही है ना? You came out of your mother's womb crying, meh, meh, meh. जब आप अपने माँ के गर्भ से आए तो आप रो रहे थे। I remember David. मुझे याद है बीबी डेविड के बारे He में। was so unhappy coming out. वो बहुत ही नाखुश था बाहर आने के It लिए। was like, why you pull me out? वो ये था कि बस मुझे क्यों बाहर निकाला। I'm just very happy here. मैं अंदर ही खुश था। You know, we want to be in this comfort place. हम आरामदायक जगह में रहना चाहते हैं And we were happy. और हम लोग बहुत खुशी मना रहे I थे। remember tears rolling down my eyes with joy. मुझे अभी भी याद है मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे खुशी के। You know, when Dawn was born, I remember standing outside the labor room, walking up and down, pacing up and down, pacing up and down. And when I heard Dawn's cry, it was like, I knew that's my daughter. और जब मेरी बेटी डॉन पैदा हुई तो मैं बस चल रहा था फिर रहा था सुनने के लिए। जब मैंने थोड़े समय के बाद रोने की आवाज सुनी मेरे को खुशी So हो गई when ये we मेरी were बेटी है। born, we cried and everybody else were happy. इसलिए जब हम पैदा हुए थे तो हम रो रहे थे दुनिया आनंद बना रही So the थी। native Indian says, इसलिए वहां के लोग ऐसे कहते हैं live your life in such a way so that when you die, the world cry and you rejoice. जब आप पैदा हुए थे तो आप रो रहे थे दुनिया खुशी मना रही थी। No, when you die, you rejoice and the world cry. जब आप मरते हैं उस समय आप खुशी मनाते हैं और दुनिया रोती है। You can only rejoice when you die if you have character. अगर आप तभी खुश हो सकते हैं अपने मृत्यु के समय में जब आपका एक अच्छा चरित्र होगा। You can only rejoice if you know you're going to heaven. आप आनंद तभी कर सकते हैं अपने मृत्यु के समय में अगर आपको ये पता है कि आप स्वर्ग जा रहे हैं। If you know your destiny is hell, अगर आपको ये पता है कि आपके जीवन का जो आखिरी लक्ष्य है वो नरक है, you think you will rejoice? आपको लगता है कि आप आनंद करेंगे? Oh, I'm so happy I'm dying. मैं तो बहुत खुश हूं कि मैं मर रहा हूं। कितना लोग बोलेंगे ऐसे? मैंने बहुत लोगों को देखा. I seen a lot of people. मैंने कई लोगों को देखा है They want to die, वो मरना तो चाहते हैं but they won't die. लेकिन वो मरेंगे नहीं। Have you seen like that? आपने देखा है क्या? They lay in the bed, and somehow even their children are saying, Dad, just give up. कई लोग ऐसे हैं बिस्तर में पड़े हैं सालों सालों से मर नहीं रहे हैं तो उनके बच्चे कहते हैं पिता बस अब छोड़ दो। They're holding on to the life. वो अपने जीवन को पकड़े रहते हैं। I have my spiritual father. He's a man of God, great man of God. मेरे आत्मिक पिता जो है वो बहुत ही महान एक प्रभु के दास हैं। He suffered physically with some physical ailment. उन्होंने शारीरिक रूप से कुछ उत्पीड़न सहा। But what he did? आपको पता है उन्होंने क्या किया? He knew the time and the hour he is going to die. उन्हें ये पता था कि किस समय और किस क्षण में वो मरेंगे। But he called his older son लेकिन उन्होंने अपने बड़े बेटे को बुलाया and his wife, और उनकी पत्नी को बुलाया। said, Come to me. उनसे बोला मेरे पास Made आओ। them stand near them. उनको अपने पास खड़ा किया। He said, I know what time I need to go, उन्होंने ये कहा मुझे पता है मुझे किस समय में but जाना I है called you लेकिन मैंने तुम्हें बुलाया to है ask your permission if I can go. कि मैं तुमसे उस चीज की इजाजत ले लूं कि मैं चला जाऊं This क्या? is real story. ये एक सच्ची घटना है। He asked his
wife and he asked his older son उन्होंने अपनी पत्नी से और अपने बड़े बेटे से इजाजत ली, and said, "Do I have your permission to go to be with Jesus?" क्या तुम मुझे अनुमति देते हो कि मैं यीशु के पास चला जाऊं? And they both, knowing his physical ailments, जानते हुए कि वो शारीरिक रूप से कमजोर थे, they said, "Yes, Dad, you can go home." उन्होंने बोला हाँ पिता, आप घर जा सकते हैं। You know what he did? उन्होंने, आपको पता है उन्होंने क्या किया? He closed his eyes. उन्होंने अपनी आंखें बंद की, He breathed his last. उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। What a beautiful way. कितना अच्छा तरीका है। That is the death of a child of God. ये है एक Right there. मसीही की मृत्यु। I would like to do that. मैं भी ऐसा करना चाहूंगा। Amen. And so, just like how we build a wall, जैसे हम एक दीवार का निर्माण करते हैं, just like how the termites construct their tunnel to go to the nest wardrobe, और जैसे एक वो जो कीड़ा जो घुन खाने वाली जो लकड़ी को खा लेती है, वो दूसरी अलमारी की तरफ पहुंच जाती है, they're building one by one, little by little. वो धीरे 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 उसको बना रही, I निर्माण want कर to रही है। encourage you मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता to हूँ build your reputation. कि अपनी प्रसिद्धि, अपने नाम को बढ़ाएं। Don't wait for you to become 65 or 75 or 85 to build your reputation. अपने जीवन के लिए इंतजार ना करें कि आप कब 70 साल के उससे ज्यादा हो जाएंगे। Build your reputation when you are young. अपनी प्रसिद्धि को तब बनाए जब आप जवान हैं। Amen. Build your reputation now itself. अपनी जो इज्जत है उसको अभी से बनाएं। Hallelujah. And that brings us to the second thing और ये चीज मुझे दूसरी ओर लेकर चलती है, that Solomon talks about. जो सुलेमान बता रहा है। Wisdom for better living. अच्छा जीवन जीने के लिए, उत्तम Some जीवन bitter जीने, things in life turning to be better things in life. जो जीवन की कुछ कड़वी चीजें हैं जो अच्छी चीज बन रही है। Solomon says, go to some funerals. सुलेमान कहता है कि कुछ अंतिम संस्कार में जाओ। Look at verse 2. 2 पद को देखेंगे। It is better to go to a house of mourning than to go to a house of feasting, for death is the destiny for everyone. The living should take this to heart. भोज के घर जाने से शोक के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्य का अंत यही है, और जो जीवित है वो मन लगाकर इस पर सोचेगा। So Solomon is comparing two things. और यहाँ सुलेमान 2 बातों की तुलना कर रहा है। One is bitter, one is sweet. वो एक मीठी और एक कड़वी The बारे में बात house कर रहा of है। mourning is a bitter place. जो एक शोक का घर है वो एक कड़वी जगह है, The house of Mary, the house of myrrh, how the house of feasting is a happy place. और जो एक भोज का जगह है, खुशी की जगह है, वो एक अच्छी जगह है। So Solomon says, if you are to choose between those two, सुलेमान कहता है अगर आपको इन दोनों के बीच में चुनाव करना है तो I encourage you to go to the dying home. मैं तुम्हें उत्साहित करता हूं कि शोक बनाने वाले घर में जाओ। How would you describe these two houses? आप कैसे इन 2 घरों के बारे में बताएंगे, व्याख्यान करेंगे? Yeah, in the house of the mourning, in the olden days, the house of the family that died, पुराने समय में जिन घरों में शोक होता था, जिनके घर में कोई मर जाता था, grief and mourning was part of the funeral, the end, the sending off. और जो अंतिम संस्कार का जो हिस्सा होता था वो ये होता था कि लोग विलाप करते थे, रोते थे। For weeks, they will not cook in the home. बहुत हफ्तों के लिए वो अपने घरों में खाना नहीं I बनाते remember थे। when I was a small boy, मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटा था, when our ancestors, my grandfather and all died, और जब मेरे जो पूर्वज लोग, जो मेरे दादा थे, दादी लोग थे, वो लोग our जब मरे, kitchen will be shut. हमारा जो रसोई घर था वो बंद रहता था। Everybody will be sitting and singing songs and grieving and crying, and it goes for even 10 days. और सब लोग बैठ जाते थे, रसोई घर बंद रहती थी, सब बैठ जाते थे, आराधना के गाने गाते थे, और ऐसे करके ये 10 दिन के करीब चलता था। I remember the neighbors bringing food for some of the older people or people who could not survive without food. और मुझे याद है उस समय पड़ोसी लोग खाना लेकर आते थे हमारे घर के बुजुर्ग लोगों के लिए, या जिनको खाना चाहिए होता But था। now लेकिन अब everything has changed. सब चीज बदल चुकी है। We have a choir that is hired to sing songs, अब जो है गाने वालों को, गायकों को बुलाया जाता है गाना गाने के लिए। and we have a live broadcast, so everybody has to dress nicely, तो सब लोग देखते हैं, लाइव चलता है, तो सब लोग को अच्छे से कपड़े पहनने होते हैं। and it's a bigger celebration than a wedding ceremony. और अब जो है वो एक बड़ा ही भव्य एक आनंद बनाया जाता है, जैसे एक शादी का होता है। So times have changed. इसलिए समय बदल चुका है। So the other house, लेकिन दूसरे घर में it is a merry house. Alcohol will be served. People are dancing. People are joking. People are having fun. दूसरा घर जो है वो आनंद का घर है, वहां लोग मजाक कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, खुशी बना रहे हैं, पी रहे हैं।
Where would you go? आप कौन से घर में When I जाएंगे? was a little boy, जब मैं एक छोटा लड़का था, my grandmother took me to a funeral. मेरी दादी जो है मुझे एक अंतिम संस्कार में लेकर गई And somehow I got lost in the crowd. और मैं एकदम से उस भीड़ में खो गया And I was a little boy. I was maybe 7 or 8 years और old. मैं 6 और 7 साल का एक बच्चा था And it was a Latin Catholic family funeral service. और वो एक कैथलिक लोगों का एक अंतिम संस्कार की And the priest comes with the black robes and black hat, and they have these things that they use to smoke incense. और वो वहां पे जो प्राचीन था वो आया, उसने जो है वो पूरे काले कपड़े पहने हुए थे, उसके हाथ में बहुत कुछ था So the time came, the body is going to be taken to the graveside. और समय आ गया था कि वो शरीर, मृतक शरीर जो है वो कब्रिस्तान ले जाया जाए। So they have this big procession, तो इसलिए वो बड़ी सी भीड़ है जो जाती है and they have these umbrellas. People hold these decorated umbrellas at the front of the procession. और जो एक छाते से होते हैं वो बड़े सजे हुए होते हैं, वो आगे आगे जाते हैं। Somebody came and said, "Stand here." किसी ने मुझे बोला कि तुम यहाँ खड़े हो जाओ And they put me on the line on the front. और मुझको लाइन में सबसे आगे खड़ा कर दिया Gave me an umbrella. और मुझे वो छाता दे दिया। I don't know what I'm doing. मुझे खुद नहीं पता था मैं क्या कर Here रहा I था। am in the procession of a dead body. मैं यहाँ पर इस यात्रा में इन लोगों Already के I साथ, have fear of the dead body. मुझे अभी वैसी भी मृतक शरीर से डर लग And रहा है looking at this Catholic priest, I was even more afraid. और ये जो कैथलिक जो पुरोहित था उसको देखकर और डर लग रहा था And I'm crying. और मैं रो भी रहा हूँ। I'm holding the umbrella and going to the procession. मैंने वो छाता पकड़ा हुआ है और मैं उस कतार में चलता जा रहा हूँ। It was about a 7 to 8 kilometers walk. वो 7 से 8 किलोमीटर की दूरी थी And it was hot. और मुझे चलना था और गर्मी No थी, water. पानी नहीं था। I feel like I'm going to faint. मुझे ऐसा लग रहा था मैं बेहोश हो जाऊंगा। Who I give the umbrella to? I'm afraid to tell anybody I can't do this. मैं किसी को बता नहीं पा रहा था कि ये छाता मैं किसको दूं अब। We went there. मैं वहां पहुंचा, I'm looking around. I can't find my grandmother. मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, मेरी दादी मुझे दिखाई My नहीं दे रही। grandmother decided not to come to the cemetery. मेरी दादी ने निर्णय ले लिया था वहीं से कि वो आएंगी नहीं कब्रिस्तान। She went home. वो घर चली गई थी And here I am in the cemetery. I don't know anybody. और मैं यहाँ जो हूँ कब्रिस्तान में आ गया, मुझे किसी को And पता so they नहीं। are doing all the rituals and they are burying the body. और वो सारी वहाँ जो भी सामग्री जो चल रही थी वो कर रहे थे और And- दफना रहे थे And everybody left. और सब लोग चले गए। Somebody came and took the umbrella from me. कोई आया और उसने मुझसे हाथ से छाता I भी ले don't know लिया। where to go. मुझे यही नहीं पता कहाँ जाना है। All I'm seeing is these people covering the body of the dead body with और mud. बस जो मैं देख रहा था बस वही था कि लोग मिट्टी डाल रहे थे उस कब्र के ऊपर। Suddenly it started raining. एकदम से बारिश होने लगी, It was so heavy rain. बहुत ज्यादा भयंकर बारिश थी The sun gone down. It was getting dark. और सूरज ढल रहा था और अंधेरा I हो रहा started था। crying. मैं बहुत रोने लगा, I started crying like crazy. मैं बहुत ही ज्यादा रो रहा था। Somehow I came out of the cemetery and I started walking to some direction. I don't know where. मैं कब्रिस्तान से बाहर निकल कर आया, मैं इधर उधर देख रहा हूँ किस किस दिशा में जाऊं And nobody on the road. और सड़क पे कोई दिख नहीं रहा, Raining so bad. बारिश भी बहुत हो रही थी। I walked and walked and walked. मैं चलता रहा चलता रहा चलता रहा, And finally I saw two men. फिर मैंने आखिरी में 2 आदमियों को In those देखा। days, people used to hold banana leaf as an umbrella. उस समय में लोग जो है केले के पत्तों को छाते की तरह इस्तेमाल So करते these थे, two men were carrying banana leaf as umbrella and they were going home. इसलिए 2 व्यक्ति जो है वो केले के पत्तों को लेके छाते जैसे चल रहे थे, अपने They घर saw जा this रहे थे। little boy crying. उन्होंने देखा एक छोटा सा लड़का रो रहा है। They were laborers who used to work for my grandfather. वो मजदूर लोग थे जो मेरे दादाजी के लिए काम करते थे। They asked me, which house are you from? उन्होंने मुझसे पूछा तुम किस घर से आए हो? I said, I'm from Kaidamangalam. मैंने नाम बताते हुए बोला अपने परिवार का। Oh, you're Chakochan's son. अच्छा, उन्होंने बोला कि तुम चाको अचिन के What are you doing here? उनके बेटे हो, तुम यहाँ क्या कर Anyway, रहे हो? I still remember those two men. They literally carried me मुझको अभी भी याद है, उन 2 व्यक्तियों ने मुझे उठा लिया and they brought me home. और मुझे वो घर ले आए। And guess what my grandfather did? और पता है आपको मेरे दादाजी ने क्या किया? He brought the coffee stick. He brought the coffee stick. वो जो है कॉफी की जो डंडी होती है वो लेकर आए गरम होता है वो coffee stick बहुत ज्यादा गरम होता है. And he just hit me like crazy. और उन्होंने मुझे बहुत जोर से मार दिया। That was my experience of going to a funeral. वो मेरा अनुभव So था जब Solomon- मैं कब्रिस्तान गया था। इसलिए Solomon, सुलेमान you are telling me to go to a funeral. इसलिए सुलेमान मुझसे फिर कह रहा I है said, कि तुम "No कब्रिस्तान doing." जाओ। इसलिए But, मैं but now I am 55 years old. लेकिन अब मैं 55 साल का हूँ, I don't mind going to funerals. मैं अब बुरा नहीं मानता इस चीज को कि मैं कब्रिस्तान Because when जाऊं, I go to the funerals,
क्योंकि जब मैं कब्रिस्तान जाता it हूँ instructs me, it teaches वो me, मुझे शिक्षित करती है, मुझे कुछ चीज सिखाती and I है realize और मैं महसूस करता we are हूँ all going to end up right कि there. हम सब लोग वही जगह पे अपना जीवन अंत करेंगे। Do you know the statistics of death rate is very impressive, आज ज्यादा हमें चकित करते हैं। right? 1 out of every 10 people are dying. 10 में से एक व्यक्ति हमेशा मर रहा है। People are dying who have never died before. लोग वैसे भी मर रहे हैं जो पहले कभी नहीं मरे। Very comforting. Yeah. So why is it that it is better to go to the house of mourning? तो ये क्या मतलब बनता है इसका कि हमें उसके घर में जाना है जहाँ शोक है। Think of it this way. इसको इस तरह से सोचें, Today, right in this day, आज इस दिन में 36,741 people will die today. आज के दिन में the world. 36,741 लोग मरेंगे आज के दिन में। 36,741 people will die today. 36,741 लोग आज के दिन में मरेंगे। That is 1,531 deaths every hour. कहने की बात यह है कि एक घंटे में 1,531 लोग मरेंगे। Now you want to know how many people die every minute? आपको ये जानना है कि हर मिनट में कितने लोग मरते हैं? 26 people. 26 लोग मरते हैं। Every minute, 26 people are dying. हर मिनट में 26 लोग मर रहे हैं। Do you know India has the highest per day death rate in the world? आपको पता है भारत में पूरी दुनिया से ज्यादा मृतकों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। Every day in India, 7,044 people die every day. हर दिन प्रतिदिन भारत में 7,044 लोग मरते हैं। In China, चीन में 5,763. 5,763 लोग मरते The हैं। third in the world is USA. तीसरा जो है वो भारत जो अमेरिका है वो है दुनिया में। 1,722 people die every day. 1,722 लोग प्रतिदिन मरते हैं। So think of it. सोचिए इसके बारे में। If that is the reality, अगर ये सत्य है तो going to a burial place, अंतिम संस्कार में जाना। if verse 2 Solomon says this is the end of all, अगर सुलेमान ये कह रहा है कि जीवन का अंत यही है, that means that includes me. इसका मतलब ये चीज मुझको भी उस चीज में जोड़ती है। What does it do to us? ये चीज हमको क्या करती है By हमारे लिए? going to a funeral, जब हम एक अंतिम संस्कार में जाते हैं, it helps me to realize ये मुझे मदद करती है ये that the महसूस things that करने के I लिए fight for are meaningless. कि जिन चीजों के लिए मैं कुश्ती लड़ रहा हूं वो अर्थहीन है। The things that I argue about is meaningless जिन चीजों के लिए मैं बहस कर रहा हूं वो चीजें व्यर्थ हैं, because I'm going to die. क्योंकि मैं मरने वाला हूं And I don't want to die in misery. और मैं नहीं चाहता कि मैं एक दुर्दशा में मरूं। I want to die with honor and dignity. मैं चाहता हूं मैं अच्छे नाम और प्रसिद्धि के साथ मरूं। How many of you have ever gone to a funeral आप में से कितने लोग कभी कोई एक अंतिम संस्कार में गए हैं and you never thought about your own death? और आपने कभी भी अपनी मृत्यु के बारे में नहीं सोचा? Have you? कभी ऐसा हुआ है? I know some of you don't want to go to a funeral. मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग कभी भी अंतिम संस्कार में नहीं जाना In चाहते। our home, even when our children were very small, we used to take them to the funeral. हमारे घर में जब हमारे बच्चे छोटे भी थे तब भी हम उनको कब्रिस्तान ले We जाते didn't थे। want to keep our children in kind of a bubble, wrapped up, not realizing the reality of life. हम उनको ये नहीं बताना चाहते थे कि हम उनको छिपा के रखें उन सत्यों से जो जीवन के हैं। I used to take my children to hospital to pray for the sick. मैं अपने बच्चों को अस्पतालों में ले जाता था कि बीमारों के लिए प्रार्थना की जाए। I have taken my children to every experience of the realities of life. मैंने अपने बच्चों को वहां सब जगह लेकर गया हूं जहां जीवन के सत्यों के वास्तविकता के बारे में दिखाया जाता Because है, that brings realization of who we are and where we are heading. क्योंकि वो चीज हमारे जीवन की वास्तविकता को बताती है और किस ओर हम जा रहे हैं उसके बारे में बताती है। Just few years ago, I had an opportunity to travel across the United States with my daughter Dawn. कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले मुझे अवसर मिला कि मैं अपनी बेटी के साथ अमेरिका के कुछ और क्षेत्रों में जा सकूं। And one of the places that we visited was the museum in Washington DC called the Holocaust Museum. और जो है वॉशिंगटन डीसी में मुझे अवसर मिला कि हम इस म्यूजियम में जा सके जिसका नाम है होलोकॉस्ट। The Holocaust Museum is a place where 6 million Jews को नासी रेजिम ने क्या कर दिया? मारपीट किया है यहूदी लोगों को, और उसका मेमोरी के लिए
एक वॉशिंगटन डीसी में ये हॉलोकॉस्ट का म्यूजियम बना के रखा है. कभी भी if you get an opportunity to go to Washington DC, please go to see the Holocaust Museum. जब भी आपको अवसर मिले तो इस म्यूजियम में जरूर जाइएगा देखने. It will change your life. आपके जीवन को ये बदल देगी. And there was one room और where वहाँ- the real shoes of the Jews who were trying to climb the mountain, who were killed, and people, their torn shoes, whose blood have dried on the shoes, still kept there. और वहां पर ऐसी एक कमरा है जहां पर उन लोगों के जूते रखे गए हैं जिनमें अभी भी खून लगा है. जब वो चढ़ रहे थे उनके ऊपर आक्रमण किया गया, उन्हें मार डाला गया. My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, it's always good to see the reality of life. ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. अच्छा है कि हम अपने जीवन के सत्यों को देखें. Nathaniel Hawthorne, he said like this: नथानियल जो एक है, उन्होंने ऐसा कहा है, a grave wherever found preaches a short and pithy sermon to the soul. एक कब्र जहां पर भी होती है वो एक जीवन की एक दयनीय हालत प्राण को बताती है. So the reality is, it teaches us how to value who we are. इसलिए सत्य ये है कि ये हमको बताती है कि हम कौन है. If you have never been to a funeral, अगर आप कभी भी किसी अंतिम संस्कार में नहीं गए हैं तो please do. कृपया करके जाइए. Maybe take a visit to the cemetery, even if you're not going to the funeral. अगर आप किसी अंतिम संस्कार में नहीं जाते हैं तो मुलाकात करने जाइए कब्रिस्तान Just take में. your car and go to the funeral, the cemetery, अपनी गाड़ी लेकर जाइए, कब्रिस्तान में एक बार होकर आए. and just walk through the garden. ऐसी चलकर देखे वहां पर, Look at the tombs. उन कब्रों को देखें, Read what is written on those epitaph stones. पढ़िए उसमें क्या लिखा है. It will revolutionize your life. आपके जीवन को वो एकदम से बदल देगी. The third and final thing I want to close today तीसरी और आखिरी बात जो मैं कहना is चाहता हूँ, verse 3 and 4. वो तीसरा और चौथा पद है. It says, frustration is better than laughter, because a sad face is good for the heart. The heart of the wise is in the house of mourning, but the heart of the fool is in the house of pleasure. हंसी से खेद उत्पन्न है क्योंकि मुंह पर के शोक से मन सुधरता है. बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों के घर की ओर लगा रहता है, परंतु मूर्खों का मन आनंद करने वालों के घर में लगा रहता है. So Solomon is comparing the bitter and the sweet. और यहाँ पर फिर सुलेमान तुलना लेकर आ रहा है मीठा और कड़वे में. And Solomon is saying sorrow is better than laughter. वो ये कहना चाह रहा है कि खेद उत्तम है हंसी से. That seems to be a little bit contradictory to what he has said in Proverbs. और नीति वचन में वो जो बात कहता है उससे यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास है. Because Solomon himself says a merry heart is good like a medicine. क्योंकि सुलेमान ये कहता है कि आनंद करने वाला जो हृदय होता है वो अच्छी औषधि है. But here Solomon says लेकिन यहाँ सुलेमान कहता है, sorrow is better than laughter. वहाँ ये कहता है वो कि जो हंसी से उत्तम खेद है. Or by a sad countenance, the heart is made better. क्योंकि मुंह पर के शोक से मन सुधरता है. The heart of the wise is in the house of the mourning, but the heart of the fool is in the house of the merry. जो बुद्धिमान का जो मन होता है वो शोक वाले घर में लगा रहता है, लेकिन जो मूर्ख का घर होता है, जो मन होता है वो मूर्ख लोगों के घर So में लगा Solomon रहता है. is saying to give allowance in your life for some sadness. इसलिए सुलेमान कह रहा है कि अपने जीवन में अनुमति दे कि थोड़े दुख आए. I'm sure we all have that, plenty of it. मैं जानता हूं कि हम में से कईयों के जीवन में बहुत And आयत में many है of वो. us are saying, I want to get out of this sadness. और हम में से कई लोग ऐसे कहते हैं कि हमें इस दुख से बाहर निकलना है. I had enough of this sadness. बहुत ज्यादा हो चुका है मेरे जीवन के But लिए. Solomon is saying, लेकिन सुलेमान कह रहा है this sadness is good for us. ये उदास या हमारे जीवन में ये खेद होना अच्छा है. Some of these painful things in life is good for us. हमारे जीवन में थोड़े दर्ददायी जो बातें हैं ये अच्छी है हमारे जीवन के I लिए. remember sending my daughter away. मुझे अभी भी याद है जब हमने बेटी को भेजा It था, was one of the most painful things I have done in my whole life. मेरे जीवन का वो सबसे ज्यादा दर्द का समय To था let go of my daughter. कि मैं अपनी बेटी को भेज दूं. That's painful. वो बहुत ही दर्दनीय था, But लेकिन that pain is essential. वो दर्द जरूरी है. That pain is so good. वो दर्द अच्छा है. That pain has made her life. वो दर्द ने जो है उसके जीवन को बना दिया. It has made her life on a path to success. उसने उसके जीवन को बना दिया उस मार्ग में जहां उसको सफलता So मिली. somehow God in his sovereign ways will turn our sorrows into joy. इसलिए परमेश्वर अपने सर्वोच्च योजना में हमारे जो दुख होते हैं उनको आनंद के लिए बदल देता है. Hallelujah. Hallelujah. Sorrow can do some good for us sometimes. हमारे जीवन का जो दुख है कभी कभी हमारे लिए कुछ अच्छा कर देता है. Because in those sorrow moments,
you assess and you evaluate things differently than before. क्योंकि उन दुख के समय में आप अपने जीवन को देखकर अच्छे से विश्लेषण करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं Im- और आप उसे अच्छा पाते हैं। Imagine we are never experiencing sorrow. ऐसा विचार करें कि हम अपने जीवन में कभी दुख ही नहीं बनाते। A life without sorrow एक जीवन जो बिना दुख के होता है is like if you cut your finger वो ऐसा होता है कि अगर आप अपनी उंगली काट लें and you don't feel any pain. और आपको कोई दर्द नहीं होता, Is it good or bad? या वो अच्छी बात है कि बुरी बात है? It's bad. वो बुरी है। If your hand is cut अगर आपकी उंगली कट जाती and है you don't feel pain, और आप दर्द महसूस नहीं you करते have हैं, some problem. इसका मतलब कुछ समस्या In है। the same way, उसी तरह से if we live in this world जब हम इस दुनिया में रहते and you हैं don't feel sorrow, और आप दुखी नहीं होते हैं if you तो, don't feel sad, अगर आप उदास नहीं होते हैं तो then there is something wrong. इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है। And many people want everything to be bubbly and good and no bad things. और कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं हर चीजें बहुत अच्छी रहें, सब चीजें सुख में रहे। Here Solomon says, यहाँ सुलेमान कहता है, sorrow can do you more good than laughter. यहाँ वो ये कहता है कि हंसी से ज्यादा खेद उत्तम है, वो अच्छा कर सकती है। And laughter sometimes just covers it up. और जो हंसना होता है कभी कभी वो हर चीजों को ढांप देती है। Laughter is a good medicine for covering it up. जो हंसी होती है वो एक अच्छी सी दवाई होती है कि वो चीजों को ढांप देती है, But that kind of a laughter is not good. लेकिन उस प्रकार का हंसना अच्छा नहीं होता। When you are sad and sorrow, जब आप उदास हैं और दुखी हैं don't laugh उस समय ना or हंसे don't try to be laughing. और उस समय कोशिश ना करें हंसने की, Cry. रोएं। Hello. It is better to cry. वो अच्छा है कि हम रोएं, It's good for you to cry. आपके लिए अच्छा है कि आप रोएं। And many people don't want to let out and just release that pain. और कई लोग ऐसे होते हैं जो बाहर उस चीज को निकालना नहीं चाहते, Holding उस it in, दर्द को holding it in, holding it in. उसको दबा कर रखते हैं, पकड़ कर रखते हैं। My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, don't hold back those pains. उन दर्दों को अपने अंदर दबा कर ना रखें, Just let the tears come out. अपने आंसुओं को बहने दें, It's good for you. वो आपके लिए अच्छा है। Jesus said on the Sermon on the Mount, यीशु ने उस पहाड़ी उपदेश में ऐसा कहा, blessed are those who mourn. धन्य है वे जो विलाप करते हैं, Blessed are those who mourn. धन्य है वे जो शोक बनाते हैं। That sounds really complicated to me. ये बहुत ही एक बड़ा कठिन सी बात लगती है मेरे How लिए। can a mourning person be blessed? कैसा एक शोक बनाने वाला व्यक्ति धन्य हो सकता है? It sounds so ridiculous. ये मेरे लिए बहुत ही एक अजीब सी बात है, But that is the reality. लेकिन वो सत्य है। We used to live in Sector 49 in Chandigarh. हम जब 49 सेक्टर में रहते थे And in Sector 47, there is a market. और उस 49 सेक्टर से पहले एक बाजार है, And between that market at 47, every morning, there is a bunch of senior citizens that come. और वहां पर एक जगह है जहां पर हर सुबह जो है हमारे जो नागरिक होते हैं, जो वृद्ध हो जाते हैं, वो लोग आते थे And I used to watch them. और मैं उनको देखता था। They stand in a circle, वो एक गोले में खड़े हो जाते they हैं, look at each other's face, वो एक दूसरे का चेहरा देखते and they हैं just clap their hands and और वो ताली बजाते हैं और इतनी जोरों जोरों से हंसते हैं। I used to stand there and look at these guys. और मैं उन लोगों को देखता था और मैं हंसता था उन्हें They're all देखकर। senior citizens. वो सब वृद्ध हो गए हैं अपनी उम्र में, They're well-to-do family people. वो बहुत अच्छे परिवारों से आते हैं And for 1 hour, they're just non-stop laughing. और वो 1 घंटे तक लगातार हंसते I रहते can थे। just imagine you being there. And me too. Yeah, I think we both will be pretty similar. Right? Just going crazy. पागलों की तरह हंसते रहते हैं 1 घंटा। Do you think all is well with them? आपको लगता है कि सब चीजें उनके साथ ठीक है? Why are they doing this laughing club? क्यों वो ऐसा करते हैं? हंसी हंसी वाले क्लब में क्यों जाते They're हैं? trying to cover up वो हर चीजों को ढांपना चाह रहे हैं, all their pain, सारे दर्द को, all the rejection. जितने भी उनको तिरस्कार मिला है। They think that 1 hour of laughter will heal them. उनको लगता है कि वो 1 घंटे अगर हंसते रहेंगे तो उससे उन्हें चंगाई मिल जाएगी। Jesus says, यीशु ने कहा, blessed are those who mourn. धन्य है वो जो शोक करते हैं। So sorrow is one of the
deepest and some of the best teacher in life. इसलिए जीवन में कई बार हमारे जो दिल के दुख होते हैं वो बहुत अच्छी शिक्षक होते हैं। Times of sorrow really helps us to mature. समय जो रोने का, उदास होने का जो समय होता है वो हमारे जीवन में परिपक्व होने का There's समय an होता है। old Arabic saying, एक अरब में बोले जाने वाली एक कहावत है, and no wonder why it came from Arab nations. ये बात कोई विचित्र नहीं है कि वो अरब से क्यों आई It है। says, all sunshine makes a desert. वो ये ऐसे कहती है कि जितनी भी जो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो रेगिस्तान बनाती हैं। All sunshine makes a desert. एक सूरज की जो रोशनी होती है वो ही रेगिस्तान बनाती है। It's good to get little bit of rain clouds thrown in with the sunshine. ये बहुत अच्छा है कि कभी-कभी बारिश भी उस धूप के साथ पड़ जाए। Amen. Sometimes we just ask God, Lord, give me sunshine. हम कई बार परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर तू मुझे सूरज की रोशनी दे दे। There are songs Yes. that talks about sunshine. ऐसे गीत हैं जो बताते हैं सूरज की रोशनी के We बारे में। all want sunshine. हम सब चाहते हैं सूरज की रोशनी। But how many of you will say, Lord, it's good to have some sorrow, some raindrops? लेकिन हम में से कितने लोग बोलेंगे कि कभी-कभी हमारे जीवन में परमेश्वर तू दुख भी दे या थोड़ी सी बारिश दे दे। Especially our today's generation, हमारी जो आज की पीढ़ी है, we are becoming so individualistic. हम बहुत ही अपने आप में स्वयं केंद्रित हो And we are चुके also हैं। becoming very westernized in हाँ, our thinking. हम बहुत ही ज्यादा पाश्चाती हो गए हैं अपनी सोच में। We don't want to express our mourning to anybody. हम अपने दुख को किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहते। We want to keep all our mourning privately. हम अपने शोक, अपने दुख को अपने पास ही रखना चाहते हैं What does व्यक्तिगत। it do? और फिर वो क्या करती It है? takes you into isolation. वो आपको अलग कर देती है And then it takes you into depression. और फिर वो आपको निराश करने लगती है And it also makes you very lonely and broken. और फिर वो आपको तोड़ने लगती है और आप अकेले हो जाते हैं। In the Bible, when you look at the Bible, जब आप बाइबल में देखते हैं, lamenting or grief or sorrow in public was a common thing to do. पुराने समय में, बाइबल के समय में विलाप करना या शोक बनाना सामूहिक रूप में ये बहुत सामान्य बात थी। So much so, lamenting was so good. There's a whole book in the Bible called Lamentations. इतना ज्यादा विलाप करना अच्छा होता था कि बाइबल में किताब का नाम भी विलाप गीत है। A large number of psalms written by David, songs of David are laments. Laments, crying. दाऊद के द्वारा लिखे गए बहुत से ऐसे भजन संहिता है जिसमें वो विलाप के बारे में, रोने के बारे में बता रहा Even है। the Lord Jesus, he wept publicly. यीशु भी हमारा जो है वो सब लोगों के सामने रोया। He looked at Jerusalem and he cried. वो यरूशलेम की तरफ देखता है और वो रोता है। At the funeral of Lazarus, his friend, at the death of Lazarus, Jesus cried. लाजर की मृत्यु पे भी वो रोया। So our sorrow, इसलिए हमारा दुख, it let us work through our grief. वो हमारे को मदद करता है कि हम अपने दुख को बाहर करें। Sorrows let us stop pretending that all is well. हमारा दुख जो है वो हम ये नहीं दिखाते हैं कि हम बहुत खुश हैं। And if I'm sorrowful, और अगर मैं दुखी हूं, if I have tears, अगर मेरे पास आंसू हैं if I start crying right now, और अगर मैं अभी रोने लगूं, what will you do? आप क्या करेंगे? What will you do? आप क्या करेंगे? What will some of you do if I just start crying here? अगर मैं यहाँ एकदम से भी रोने लगूं तो आप में से कुछ लोग क्या करेंगे? Yes, you will rush to me. आप जल्दी से मेरे पास आएंगे, Pastor James, आप मेरे कंधे पे हाथ रखेंगे। all is well. पास्टर जेम्स, सब ठीक है। They will comfort you. वो आपको तसल्ली देंगे। That's the beauty of lamenting publicly. ये एक सुंदरता है जब आप सामूहिक रूप में रोते When you हैं। know, when you let others know your grief, you'll have people that will come to support जब you. आप दूसरे लोगों को दिखाते हैं कि आप दुखी हैं तो आप अपने आप को मदद करते हैं। This place, church, ये कलीसिया जो है चर्च, is a place where we can hear your grief. यहाँ पर हम आपके दुख को सुन सकते हैं। We can cry with one another. आप एक दूसरे के साथ हम रो सकते I हैं। appreciate some of you who stop me and say, Pastor James, I have something to share with you. मैं आप लोगों का सराहना करता हूँ, उन लोगों का जो मुझे रोक कर मुझे बताते हैं अपने बारे में। I know I have a busy schedule. मुझे पता है कि मेरे पास बहुत ही मेरा व्यस्त But समय let रहता me है, tell you, I'm never too busy to cry with you. लेकिन मैं इतना व्यस्त नहीं हूँ कि मैं आपके साथ रो ना सकूं। Thinking of some of those things that some of you share makes me teary right now. जब आप लोगों के बारे में, जब आप जो लोगों ने विषय बांटे हैं मुझसे, उनको बारे में सोच के मेरे अभी भी आंखों में आंसू हैं। God sees your pain. परमेश्वर आपके दर्द को देखता है, He sees your sorrow. वो आपके दुख को देखता है।
And so let's grieve together. इसलिए आइए मिलकर एक दूसरे के साथ शोक Let's बनाएं। stop pretending that everything is good. बनावटी दिखाए ना कि सब चीजें ठीक चल रही हैं। So only a fool will think in his heart सिर्फ एक मूर्ख ही है जो अपने दिमाग में ऐसा सोचेगा that he will go to a merry place. कि वो एक आनंद करने वाले घर में And जाएगा। I know some people try to seek comfort from their sorrow in alcohol or drugs or sex or pornography or whatever else or games. I don't know what you do to distract yourself from sorrow and pain. और कई लोग अपने दुख को छिपाने के लिए गलत गलत कामों में चले जाते हैं ताकि अपना आनंद पालें। You will never come out of your pain. हम कभी भी ऐसे में आनंद से बाहर नहीं The आ more सकते। you try to cover it up by other things, जब आप ज्यादा और चीजों से उन चीजों को ढांपने की कोशिश the करेंगे, more you go into depression. आप उतना ही ज्यादा निराशा में चले जाएंगे। I found this poem. I'm going to close with this right now. ये कविता है जो मैं आपके सामने पढ़ना It's चाहता हूँ। written by Robert Browning Hamilton. रॉबर्ट ब्राउनी हैमिल्टन के द्वारा ये लिखी गई है। He says, वो ऐसा कहते हैं, I walked a mile with pleasure. मैं आनंद के साथ 1 मील गया। She chatted all the way, वो पूरे समय बात करती रही, but left me none the wiser for all she had to say. लेकिन जो भी कुछ वो बोल रही थी उसमें उसने मुझे कहीं भी बुद्धि नहीं छोड़ी। I walked a mile with sorrow, मैं 1 मील दुख के साथ गया and never a word said she. और उसने एक भी शब्द नहीं कहा। But oh, the लेकिन things I learned from her as sorrow walked with me. लेकिन वो चीजों को जो मैंने सीखा जब दुख मेरे साथ चला। You see, my friend, sorrow is a great teacher. मेरे मित्रों, दुख जो है एक बहुत अच्छा शिक्षक है। It's a good instructor. वो बहुत ही हमको निर्देश देने वाला Because है, Solomon experienced it all in क्योंकि his life. सुलेमान अपने जीवन में पूर्ण रीति से उस चीज को अनुभव किया है। So today, as we wrap up our teaching time इस- on Ecclesiastes, इसलिए जब हम आज सबोपदेशक की पुस्तक को हम खत्म करते हैं यहाँ 3 पे, things 3 बातें that we need to wise up जिन चीजों के लिए हमें बुद्धि पानी है for a better living. उत्तम जीवन जीने के लिए। Number 1, सबसे पहली बात, build a good reputation. अपने एक अच्छी प्रसिद्धि का निर्माण करें। Would you just put your hand out to God like this? क्या अपने हाथों को ऐसे परमेश्वर की ओर फैला सकते Say, हैं? Lord, give me the grace, परमेश्वर से बोले, परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे, give me the ability परमेश्वर मुझे योग्यता दे, for the remaining of my time on this earth, मेरे जीवन के वो जो समय जो बचा है इस पृथ्वी के that ऊपर, I will be a good man. कि मैं एक अच्छा मनुष्य I'll बनूंगा, be a good woman. कि मैं एक अच्छी स्त्री बनूंगी, I want to be a person of good repute. मैं एक अच्छी एक इज्जत और प्रसिद्धि रखने वाला व्यक्ति When बनूंगा। others see me, जब दूसरे लोग मुझे देखेंगे, when people see me, जब लोग मुझे देखेंगे, they will be drawn to me. वो मेरी तरफ आकर्षित होंगे, They will think good of me वो मेरे लिए अच्छा महसूस करेंगे, because of the reputation. क्योंकि वो प्रसिद्धि जो नाम मैंने कमाया My है, identity, मेरी जो पहचान है, my reputation मेरी जो क्षमता है, is not in my self-righteousness, वो इज्जत जो है मेरे स्वयं की धार्मिकता में नहीं है, but it is because of what you have done in my life. लेकिन जो तूने मेरे जीवन में किया है उसके द्वारा है। Your grace, तेरा अनुग्रह, your grace तेरा अनुग्रह gives me and give me the reputation. वो मुझको इज्जत देती है। So Father, इसलिए पिता, give us a heart to go to funerals. हमको ऐसा हृदय दे कि हम अंतिम संस्कारों में जाएं, Give us such a heart to go and grieve with those who are grieving, कि आप हमें ऐसा हृदय दे कि जो लोग दुख बना रहे हैं, शोक बना रहे हैं, उनके साथ हम शोक करें, so that we can reflect in our own life ताकि हम अपने जीवन में स्वयं देख सकें and do those things that are important to us. और हम वो चीजों को कर सके जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। Lord, हे पिता, help us, Lord, to accept the sadness of our life. प्रभु हमारी मदद करें आप कि हम हमारे जीवन के दुखों को समझ सकें, And in that sadness, और उस दुख में you are able to give us joy. तू हमको आनंद दे सकता है। It seems to be conflicting, Lord. ये बहुत ही ज्यादा एक विरोधाभास जैसा दिखाई But देता we है प्रभु, see how this bitterness can be turned into sweet. लेकिन हम ये समझते हैं कि कैसी ये कड़वाहट एक मीठे में बदल जाती है। So, Father, इसलिए पिता, give us grace to sorrow. आप हमें अनुग्रह दे इस दुख में, Give us grace to endure sorrow.
हम पे अनुग्रह करें कि हम इस पीड़ा इस दुख को सह सकें। I pray for my people in this church, परमेश्वर हम कलीसिया में सब लोगों के लिए प्रार्थना करता those who हूँ are watching us online, जो हमें ऑनलाइन भी देख रहे हैं इस समय, that you minister to कि everyone. परमेश्वर आप सबों के बीच में अपनी उपस्थिति रखें, Give us wisdom for better living. कि आप हमें बुद्धि दे कि हम एक उत्तम जीवन जिएं। In Christ's name we pray. मसीह के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन।